اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کے آخری آیات میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے درمیان تم میں سے ہی رسول آئے، تم جیسا ہی انسان تھے وہ، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیاں ان پر گراں گزرتی تھی، حریص علیکم، اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں نفع پہنچانے کے لیے بڑے حریص تھے، بڑے لالچی تھے، وبالمؤمنین رؤوف رحیم، اور ایمان والوں کے لیے بڑا مہربان اور بڑا شفیق تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو بیان کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اپنی امتی کے لیے رکھا کرتے تھے، اور چند صفتیں بیان کی۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری پریشانیاں ان پر گراں گزرتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی پر، اپنے ماننے والوں پر اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اتنے زیادہ شفیق تھے کہ امت کی پریشانی آپ کی پریشانی تھی، امت کا رنج آپ کا رنج تھا، امت کی تکلیف آپ کی تکلیف تھی، امت کی پریشانی آپ کی پریشانی تھی۔ اس کے بعد دوسری صفت فرمائے کہ حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تمہیں نفع پہنچانے کے لیے بڑے حریص تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ کون کون سے اعمال کریں جس کی وجہ سے میری امتی کا بھلا ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کی بھلائی اور خیر خواہی چاہی ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دعا ایسے کرنے کا موقع دیا کہ جس دعا کے کرنے سے پہلے ہی اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی خود اللہ رب العالمین نے دے دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نے اپنے اس دعا کو دنیا کے اندر استعمال کر لیا، دنیا کے اندر یوز کر لیا، لیکن ایک میں ہوں جو میں نے اپنے اس دعا کو بچا کر رکھا ہے، اور کل قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کا معاملہ کرے گا تو حشر کے میدان میں اپنی امتی کے لیے سفارش کروں گا، اپنی امتی کا سفارش بن کر آؤں گا، اور تب میں اس دعا کا استعمال کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امتی کے لیے محبت تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھائی مومنین رؤوف رحیم، اور ایمان والوں کے لیے، اہل ایمان پر آپ بڑا شفیق تھے، بڑا مہربان تھے۔ حضرات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے تو آپ کے ماننے والے، قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی پر یہ واجب، لازم اور ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت کیا جائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی سے کی ہے۔ محبت رسول یہ ایمان کا تقاضا ہے، محبت رسول یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وہ مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہ ہو، وہ مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار نہ ہو، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے جذبات نہ ہو۔ سامعین کرام، یہ محبت بھی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ محبت بھی ان تمام محبتوں میں جو محبتیں ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارے دوست و احباب کی محبت، ہمارے والدین کی محبت، ہمارے بیوی بچوں کی محبت، ہمارے عزیز و اقارب کی محبت، ہمارے رشتہ داروں کی محبت، مال و دولت کی محبت، دنیا کی محبت، کاروبار کی محبت، ان ساری محبتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام محبتوں میں حکمران نہ بن جائے، ان تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے، ان تمام محبتوں میں بڑھ نہ جائے، تب تک ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے ماں سے بڑھ کر، اپنے باپ سے بڑھ کر، اور یہاں تک کہ سارے لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ سامعین کرام، جو لوگ دنیا کی محبت کو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर फौकियत देते हैं, दुनिया की मोहब्बत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर ज्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वार्निंग देते हुए, धमकाते हुए फरमाया कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि जो लोग अपनी माँ की मोहब्बत को, अपने बाप की मोहब्बत को, अपने भाई की मोहब्बत को, अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की मोहब्बत को, अपने घर बंगलों की मोहब्बत को नबी की मोहब्बत पर फौकियत देते हैं, नबी की मोहब्बत से ज्यादा चाहते हैं, ऐसे लोगों को इंतजार करना चाहिए उस लम्हे का जब ये लोग अजाब का लुत्फ़ बन जाएंगे, जब इन्हें अजाब आ पकड़ेगी। सामने इकराम, हमारे ऊपर मुसलमान होने के नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये लाजिम और जरूरी है। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पढ़ते हैं, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ताल्लुक से पढ़ते हैं, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को मुताला करते हैं, तो आपके जो जलीलुल कद्र सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन है, उन्होंने नबी से मोहब्बत की एक मिसाल कायम की थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से एक मरतबा सवाल किया गया कि आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि काना अहब्बा इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व आबाइना व उम्महातिना व मिनल माइल बारिद अल समा, कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मोहब्बत की कि हम अपने अमवाल से बढ़कर, अपने माल और दौलत से बढ़कर, अपने बाप से बढ़कर, अपनी माँ से बढ़कर, यहाँ तक के सख्त गर्मी के मौसम में, सख्त प्यास के मौके पर जो मोहब्बत एक प्यासे इंसान को ठंडे पानी से होती है, उससे ज्यादा हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहा और उनसे मोहब्बत की। ये मोहब्बत रसूल की मिसाल है जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने कायम की है। एक दूसरी मिसाल, हज़रत खुदैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हें मुशरिकीन ने पकड़ लिया था और उनको सूली पर चढ़ा रखा था और मुशरिकीन तंज़ो तशनीह कर रहे थे और हज़रत खुदैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान का इम्तिहान ले रहे थे। हज़रत खुदैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु के मोहब्बत रसूल का इम्तिहान ले रहे थे। एक काफिर वो मजाक करते हुए कहता है कि ऐ खुदैब, अब तो तुम चाहते होगे कि किसी तरह तुम्हारी जान बच जाए और तुम्हारी जगह मोहम्मद को सूली पर चढ़ा दिया जाए और उसकी जान ले ली जाए। खुदैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना झिझक जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, अगर मेरी जान के बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभने की भी तकलीफ हो तो मुझे ये कबूल नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं है कि मेरी जान के बदले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैर में कांटा चुभने की भी तकलीफ हो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने बड़ी सच्ची मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इसकी सैकड़ों मिसालें हमें तारीख के अंदर मिलती है और अहादीस इसकी गवाह है। सामईन इकराम, मोहब्बत रसूल जिसके ताल्लुक से हम बारहा बयानात सुनते हैं, इस मौजू पर बार बार बात की जाती है। मोहब्बत रसूल ये सिर्फ जुबानी दावे का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत रसूल के अंदर अमली तकाज़े का होना जरूरी है और जिस मोहब्बत में अमली तकाज़े नहीं हो वो मोहब्बत कहलाने के लायक ही नहीं है। चंद एक अमली तकाज़े भी बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। मोहब्बत रसूल का अमली तकाज़ा ये है कि सबसे पहले जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हम अदब व एहतराम का मामला करें, हम उनका एहतराम करें। जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो, जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो, जहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हो, जहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानून हो, हमें अदब एहतराम का मामला करना चाहिए और पुरसुकून के साथ उनकी बातों को सुनना चाहिए और अदब का लिहाज करते हुए हमें कोशिश करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया है वो करें और जिन चीजों से रोका है उन चीजों से रुक जाए। मैं एक वाकया बयान करता चलूं। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब तरफैन से, दोनों तरफ से सफीर आए, मुसलमानों की जानिब से कुछ सफीर काफिर के पास गए और काफिर की जानिब से कुछ सफीर मुसलमानों के पास आए। उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो
मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे, वो आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के दिलों में मोहब्बत का जज्बा देखा। और उर्वा बिन मसऊद अपने कौम के पास लौटे और कहा कि मैं हिरकल बादशाह के पास भी गया हूँ, मैं ईरान के बादशाह किस्रा के पास भी गया हूँ, लेकिन जो अदब, जो मकाम, जो ताज़ीम, जो एहतराम मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके सहाबा के दरमियान देखा, वैसी इज्जत, वैसा अदब और वैसा एहतराम ना मैंने बादशाह हिरकल का देखा, ना मैंने ईरान के बादशाह किस्रा का देखा। वो जब बात करते हैं तो नजरें झुकाकर बात करते हैं, और जब उनको हुक्म दिया जाता है तो फौरन उसकी तकरीर करते हैं। और हक तो तब है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते हैं तो उसके वज़ू के पानी को भी नीचे नहीं गिरने देते, उसको हासिल करने के लिए टूट पड़ते हैं। उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कौम से कहा कि मेरा मशवरा है कि आप ऐसे लोगों से ना लड़िए जो नबी से, अपने मोहम्मद से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो। मैं मशवरा देता हूँ कि ऐसे लोगों से ना लड़ा जाए। इन्होंने अपनी जान हथेलियों पर रख कर आए हैं, ये किसी भी सूरत में मोहब्बत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ये किसी भी सूरत में मोहब्बत को अकेले नहीं छोड़ेंगे। मेरा मशवरा है कि ऐसे लोगों से ना लड़ा जाए। ये है सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के दिलों में नबी की मोहब्बत रसूल का एक दूसरा आमली तकाजा और सबसे अहम आमली तकाजा वो ये है कि सिर्फ जुबान से ये कह देना कि मैं नबी को चाहता हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, ये काफी नहीं है, बल्कि हमें हकीकत में मोहब्बत रसूल का दम तब भरेंगे जब हम हकीकी मायने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। और ये तब होगा जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हर काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल नमूना मानेंगे। हम जो भी काम करेंगे तो ये सोचेंगे कि हमारे नबी ने इस अमल को करने का कौन सा तरीका बताया है। हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम सफर में हैं, हम हजर में हैं, हम घर में हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को करने का कौन सा तरीका बताया है और इस अमल में हमारी कहां तक रहनुमाई की है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो जो बात करने का हुक्म दिया है उन बातों को करें और जिन चीजों से हमें रोका है उनसे रुक जाएं।